Shall we read Ephesians chapter 2 and verse 19? Now therefore, you are no longer strangers, you are no longer foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। You are no longer strangers. अब तुम अजनबी या मुसाफिर नहीं रहे। You are no longer foreigners. अब तुम विदेशी नहीं रहे। You are no longer orphans. अब तुम अनाथ नहीं रहे। You are members of the household of God. परंतु परमेश्वर के पवित्र भवन के तुम सदस्य हो गए हो। If you read John 14 and verse 18, यदि यूहन्ना उसके 14-18 को पढ़ेंगे, our precious Lord said, हमारा बहुमूल्य परमेश्वर कहता I will है, never leave you comfortless. मैं तुम्हें कभी तसल्ली के बिना न छोड़ूंगा। The Amplified Bible says, और एम्पलीफाइड बाइबल जो है वो ऐसा I कहती है, will never leave you as orphans. मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। To be an orphan is the most terrible thing in this world. इस संसार में अनाथ होना ये सबसे खतरनाक बात है। When I was just 20 years old, जब मैं सिर्फ 20 साल का था, I received my salvation. मैंने उद्धार को पाया I said, I'm no more an orphan. और मैंने कहा अब मैं अनाथ नहीं हूँ। Every day I began to pray. हर दिन मैं प्रार्थना करने लगा। I will read the Bible. मैं बाइबल को पढ़ता I was thrilled और मैं to रोमांचित हो see the जाता। miracles performed by my father. मेरे पिता के द्वारा जो चमत्कार किए जाते थे उसको देखकर I began to ask him, मैं उससे मांगने लगा, where are you, O God? हे परमेश्वर तू कहाँ Where are है? these miracles? वो चमत्कार कहाँ है? I don't find anybody talking to you. और मैं नहीं देख पाता कोई तुझसे बात करते The हुए। Bible says बाइबल कहती है in Genesis 5:24, और उत्पत्ति 5:24 में Enoch walked with you. हनोक परमेश्वर के साथ चला। 6:9, 6:9 में Noah walked with you. नोहा तेरे साथ चला। Exodus 33:11, और निर्गमन उसके 33:11 Moses talked to you as a friend would talk to another friend. और मूसा एक मित्र से जैसे बात करता था तुझसे बात करता था। Numbers 7:89 says, और गिनती 7:89 में लिखा है, you talked to Moses from the throne of grace. और अनुग्रह के सिंहासन से तू मूसा से बातें करता था। Numbers 12:8 says, और गिनती 12:8 में लिखा है, Moses saw your image. और मूसा ने तेरे प्रतिरूप को देखा He saw your visage और तूने तेरे पीठ को उसने and दिखाने talked to you पाया face to face. और वो आमने सामने तुझसे बातें करता था। The Bible says, बाइबल कहती है, Exodus chapter 34, निर्गमन 34 अध्याय verses 30 and 35, 30 और 35 वचन, Moses stayed with you for 40 days और मूसा 40 दिन तक उसको देखता and रहा his face began to shine. और उसका चेहरा चमकने लगा। Where are these experiences? ये अनुभव कहाँ है? James chapter 2 and verse 23 says, याकूब 2:23 कहता है, Abraham walked with God. अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता Abraham था। was called the friend of God. अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। Where is his experience? ये अनुभव कहाँ है? I would like to walk with you. मैं तेरे साथ चलना चाहता I हूँ। want to see you. मैं तुझे देखना चाहता हूँ। I began to cry. मैं रोने लगा Whole day I will go to the bank and work. और सारा दिन मैं बैंक में जाके काम करता, But before going to the bank, I will cry. परंतु बैंक जाने के पहले मैं रोता। When I would come back from the bank, I will cry. जब मैं बैंक से वापस आता मैं रोता। I will cry till night 12 o'clock. रात के 12 बजे तक रोता। Not just one day. और एक दिन नहीं, 7 full years I cried. 7 साल तक मैं रोता रहा। That is where the problem lies, my brother. और यही तो समस्या है मेरे मित्रों। Jeremiah 29:13 says, और यिर्मयाह 29 उसके 13, you shall seek me and you shall find me. यदि तुम मुझे खोजोगे तो पाओगे। When you seek me with all your heart, जब तुम मुझे पूर्ण हृदय से खोजोगे, with all your soul, अपने पूर्ण प्राणों if you से, seek me, यदि तुम मुझे you खोजोगे shall find तो me. तुम मुझे पाओगे। Night 12 o'clock I prayed. रात को 12 बजे मैंने प्रार्थना की। Next day, अगले दिन came back from the bank at 9:30. और 9:30 बजे मैं बैंक से वापस आया। Every night we'll have prayer. हर रात हम प्रार्थना मिलकर करते थे। We will never go to bed without prayer. प्रार्थना के बिना कभी हम सोने नहीं जाते थे। Every morning at 6 o'clock we'll have family prayer. और हर सुबह 6 बजे हम पारिवारिक प्रार्थना करते थे। The family that prays together will stay together. और वो परिवार जो एक साथ प्रार्थना करता है एक साथ बना भी रहता है। Most of the blessings that we received from God came only during our
family prayer. और जो कुछ आशीषें हमने अधिकांश पाई है वो पारिवारिक प्रार्थनाओं के समय में पाई हैं। That night also at 9:30 we knelt down. और उस रात को भी 9:30 बजे हमने घुटने टेके And my father prayed the night's prayer. और मेरे पिता ने रात की प्रार्थना करी। God chose that moment. परमेश्वर ने उस क्षण को चुना। The whole room was filled with His mighty presence. पूरा कमरा उसके सामर्थ्य उपस्थिति से भर गया। It is God's will that you and I should be like Him. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं उसके समान बने। That's why He has sent the Holy Spirit upon us. इसीलिए उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उड़ेल दिया है। What a wonderful God we कितना have. अद्भुत परमेश्वर वो हमारा है। He wants us to be heirs of God. वो चाहता है कि हम परमेश्वर के He वारिस बन wants us to be जाएं। the heirs of God. हाँ, वो चाहता है कि हम परमेश्वर के वारिस बन जाएं। हम विश्वास करते हैं कि आपने इस संदेश के द्वारा आशीषों को पाया होगा। तो आइए अब बहन स्टेला दिनकरन के साथ मिलकर प्रार्थना में शरीक होएं और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। Our precious and loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you for the wonderful presence. धन्यवाद आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। Come with all the majesty, Master. प्रभु अपने वैभव के साथ हमारे बीच में उतर आए। You are a prayer answering God. आप तो प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। As I told your children, जैसे मैंने आपके बच्चों से कहा है, Lord bless them in a new way today. वैसे ही परमेश्वर ने आज नए तरीके से आशीष दे। Remove all their small worries and cares. इनके जीवन की छोटी छोटी चिंताओं को, मुसीबतों को दूर करे। Those who look at you वे जो आपकी ओर ताकते हैं and cry unto you to take them to a new step. और जो आपको पुकार के कहते कि परमेश्वर उन्हें एक नए स्तर तक तू ले जा। Lord, lead them in your way, in according to your own way, Master. तो प्रभु अपने मार्गों में, अपने तरीकों में उनकी अगुवाई करें। Let them follow you with all faithfulness. होने दे प्रभु, पूरी विश्वास योग्यता से ये तेरे पीछे चले। Make them shine for your glory. तेरी महिमा के लिए इन्हें चमकने दे। Show them the way, Father. इन्हें मार्ग दिखा। Give them grace to read your word. आपके वचन पढ़ने का अनुग्रह इन्हें दे। Speak to them through your word. और अपने वचनों के द्वारा इनसे बातें करें। And lead them according to your will. और अपनी इच्छा के अनुसार इनकी अगुवाई करें। Master, I pray for each and everyone who is crying right now. प्रभु, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हमारे साथ मिलकर आपको पुकार रहा है। Those who are crying for many problems, remove everything by the mighty power. वे लोग जो अपने जीवन में कई समस्या के कारण से प्रभु आपको पुकार रहे हैं, इनकी हर एक समस्या को छुटकारा दिलाएं। Fill them with your presence. अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दें। Every home, हर एक, every heart, हर एक हृदय, let them receive your peace, होने दे वो आपकी शांति को your पाए, joy, आपके आनंद को your पाए, power, आपकी सामर्थ्य को the पाए, gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वरदान the पाए, fruits of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फलों को Let पाए। their lives be revolutionized. प्रभु, इनके जीवन जिंदगियां बदल जाए। Let them be overflowing with joy. प्रभु, होने दे ये तेरे आनंद से उमड़ने लगे। Lord, supply all the needs. प्रभु, इनकी सारी जरूरतों को पूरा Supply, Master. करें। इनकी जरूरतों को Right पूरा now. करें इसी समय। Let it flow in their hearts, होने दे वो इनके हृदयों में in their बहे, bodies, इनके शरीरों in में, their lives, इनके जीवनों in में, their homes, इनके घरों the में, job they are doing, इनकी नौकरी में, wherever they go. जहाँ कहीं ये Let जाते them be हैं, blessed abundantly. ये हर जगह आशीष पाए। Let them shine for your glory. आपकी महिमा के लिए चमके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन।